सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज हम जो देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन द सेम थिंग। वॉट एवर वी विल डू इन फॉर मीन्स मध्य प्रदेश, like this is economy, so it's economy for Madhya Pradesh. Indian economy you have to cover from other sources like 11th class NCERT growth and development, 12th class, and then you can take a reference book also, whatever you are interested, Ramesh Singh or Sanjeev Verma, both the two books are good. So let's start. So economy जो टर्म है दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ओइकोस एंड नोमोस. So oikos means eco means oikos, and nomos means norms. So oikos means home. So economy is a home of the rules and regulation. So that is economy. Now let's do introduction of economy. So economy of Madhya Pradesh is based on its rich forest resource, land, soil type and climate, and its strategic location in heart of India. And agriculture, forest produce, industries, minerals together constitute the dimension of economy of Madhya Pradesh. So that is the introduction. See, आप मुझे ये बताइए कमेंट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज चीफली एन एग्रेरियन इकोनॉमी. सो मध्य प्रदेश कृषि कर्मठ राज्य, सबको पता ही है, एग्रेरियन इकोनॉमी है. एज मोर देन 71.25% ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन दिस सेक्टर. सो रीजंस फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश क्या क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं. मध्य प्रदेश इज कमिटेड टूवर्ड फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. सम ऑफ द फैक्टर दैट प्रमोट द ग्रोथ आर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी विच मीन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, backed by an impressive compound annual growth rate. So and the second one is strategic location. So interconnected cities, market growth rate, migratory population, accessible market hubs, borders, institutions and terrorist attack, landlocked state, sharing different variety of culture and cuisines. Next जो important है that is proactive government approach and enabling. So Madhya Pradesh government has introduced friendly policies and created single window secretariat, MPTRIFSC. So for smooth facilities of investment. Another one is reversed industrial infrastructure. 231 notified industrial areas, 19 growth centers, numerous special economic zones, 12 product specific park to facilitate investment and faster growth. जो next one है that is large land parcel for industrial use on low rates and easily. Next one is strong market and consumer based. So these are some factors जो मध्य प्रदेश की ग्रोथ में काम करते हैं. Another one is agriculture in MP. So we all know मध्य प्रदेश जो है कृषि कर्मठ राज्य है. इकोनॉमी ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज चीपली एग्रेरियन, predominantly rural, the availability of cheap labor, promising irrigation facilities, balanced climate and ample land resource. So these are the agriculture things. The contribution of agriculture sector to state GDP is nearly 20 to 25%. तो 20 से 25% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसकी मध्य प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. एमपी इज बेस्ड विथ वेरिंग क्लाइमेट कंडीशन,
soil and diverse cropping pattern. Hence, the land area is being divided into 11 climate zone. So हमने जो लैंड एरिया है उसको 11 क्लाइमेट जोन में बांट रखा है. अब देख लेते हैं मेन क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश क्या क्या है. सो ये हम 3 उसमें देखने वाले हैं. राबी सीजन, खरीफ एंड जायद फसलें. सो जायद फसलें और कमर्शियल क्रॉप्स. सो रबी क्रॉप कौन कौन सी है? वीट, राइस, मेज, और जो फसलें जो जुलाई और अक्टूबर में सोन होती है और जुलाई एंड अक्टूबर टू नवंबर तक कटिंग हो जाती है जिसकी. तो जून से जुलाई के मंथ में सोन होगी और अक्टूबर नवंबर में कटिंग होगी. सो वीट देख लेते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, राबी क्रॉप ग्रोज इन मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड wheat production. We all know these are facts. Next one is rice. So second largest grown crop of Madhya Pradesh, largest grown crop of undivided Madhya Pradesh. Later production decreased after division of Madhya Pradesh with Chhattisgarh. Then है maize. Maize जो है वो खरीफ क्रॉप है. Semi dry unirrigated region. Only get irritated by rain water. So मक्का जो है मेज उसमें इरिगेशन उतना रोल प्ले नहीं करता है, मतलब इरिगेशन ही रोल ज़्यादा प्ले करता है, और जो मानसून रेन होती है दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल. सोन इन जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में कटिंग. उसके बाद है ज्वार. दिस इज़ द मेजर फूड ग्रेन. मध्य प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार आफ्टर वीट. उसके बाद खरीफ क्रॉप्स देख लेते हैं. ग्राम, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट. ओ सॉरी, यहाँ पे हमने क्या मेज में खरीफ पढ़ लिया. उसके बाद खरीफ क्रॉप में ग्राम आ जाती है. सोन इन मंथ ऑफ अक्टूबर. ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड होती है. मध्य प्रदेश रैंक सेकेंड एमोंग ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स. तो नॉर्दर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो है बाकी सारे रीजन में होती है. उसके बाद अरहर, मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन कंट्री. सो अरहर में फर्स्ट है कंट्री में. और सोन इन जून जुलाई में अलोंग विथ कॉटन एंड ज्वार. उसके बाद सोयाबीन जो है कॉन्स्टिट्यूट 60 to 63%. कंसिडरेड सोया स्टेट. सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अ पल्स प्रोटीन क्रॉप बट आल्सो एन इम्पोर्टेंट केस क्रॉप. सो केस क्रॉप भी है. ग्राउंड नट पे आ जाते हैं. केस क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है. सक्सेसफुली ग्रोन इन डीप वेल ड्रेन सॉइल विद अ सैंडी और लूज सरफेस लेयर. तो इस तरह की मिट्टी रिक्वायर्ड होती है. उसके बाद हमारी कुछ कमर्शियल क्रॉप है स्पेसिफिकली, जैसे अलसी हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया. तो अलसी जो है, अलसी पता ही है सब लोगों को, पहले जो है पशुओं को चारों के लिए खिलाई जाती थी, एनिमल्स की फोडर के लिए अलसी का यूज़ किया जाता था. अभी जो है इंसान भी खाते हैं. ऑयल सीड है, पहले भी थी अभी भी है. ऑयल सीड है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बोई जाती है. चंबल एंड ग्वालियर जो है एरिया, उस वाले रीजन में रबी क्रॉप ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल. सो रबी क्रॉप है. उसके बाद शुगर केन जो है वो कमर्शियल क्रॉप में काउंट होगी हमारी. कॉटन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है. सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड बिटवीन नवंबर एंड मार्च. ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड मालवा रीजन, मोर इन ड्रेन सॉइल रीजन नियर कैचमेंट 210 फॉरेस्ट फ्री डेज. तो बिना फर्स्ट के दिन चाहिए 210 फर्स्ट फ्री डेज चाहिए. उसके बाद है एग्रो क्लाइमेटिक जोन. तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम दो तरह से क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. एक तो एग्रीकल्चर रीजन में पढ़ेंगे, दूसरा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसको किस तरह से क्लाइमेटिक जोन में बांट रहा है वैसे. तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन. सो वीट एंड कॉटन
जो है वो उज्जैन में, मंदसौर में, शाजापुर में, राजगढ़, देवास और सीहोर। तो राजगढ़, देवास और सीहोर ये वाले रीजन जो है इसमें जो है वीट और कॉटन ज़्यादा बोया जाता है। उसके बाद राइस एंड कॉटन वाले रीजन है खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन। सो यहाँ पे जो है वो राइस और कॉटन ज़्यादा बोया जाता है। फिर है कॉटन, और जो कॉटन ही स्पेसिफिक बोते हैं धार, झाबुआ, उज्जैन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, रतलाम और खरगोन। तो इस वाले रीजन में केवल कॉटन बोई जाती है। फिर राइस भी है कि एक इंटायर ईस्टर्न मध्य प्रदेश बॉर्डरिंग छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, वहाँ पे आप राइस ही बोते हैं सब केवल। फिर ज्वार जो है वो आपकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बोई जाती है। और वीट और ज्वार दोनों फसलें जो है वो बुंदेलखंड, सेंट्रल मालवा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ बोई जाती है। फिर है राइस, कॉटन, ज्वार जो है वो बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 3 जिले जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे राइस, कॉटन और ज्वार बोई जाती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट हमने किस तरह से बांटते हैं, तो डिपार्टमेंट ने बांटते हैं 5 सेक्शन में, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न और एक इंटायर मध्य प्रदेश, इंटायर ईस्टर्न मध्य प्रदेश। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल ये वाला रीजन। तो वेस्ट में जो है वो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेस्ट वाला जो रीजन है मालवा वाला, यहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, कॉटन और ज्वार ज़्यादा बोई जाती है। फिर जो नॉर्थ वाला रीजन है इस रीजन में वीट एंड ज्वार ज़्यादा बोई जाती है। और एडिशनली एरियाज ऑफ छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी लाइज इन दिस रीजन। तो छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी भी इसी रीजन में आते हैं, लेकिन ये वाले रीजन जो है ये हमें पता है कि ये नॉर्थ में नहीं है। उसके बाद सेंट्रल जो रीजन है उसमें वीट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम जायद क्रॉप्स, वीट बोया जाता है और जायद फसलें थोड़ी ज़्यादा बोई जाती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रीजन ऑफ वीट एंड राइस, तो ईस्टर्न पार्ट में वीट और राइस बोया जाता है। इंटायर ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जो एक पूरा इंटायर ईस्टर्न मध्य प्रदेश देखा जाए उसमें राइस, एक्सेप्शनली ऑल्सो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट से जो एरिया लगता है डेट इज उस वाले रीजन में राइस थोड़ा ज़्यादा बोया जाता है। फिर क्रॉप एंड टॉप प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ओनियन जो है खंडवा में सबसे ज़्यादा होता है। जिंजर जो है छिंदवाड़ा में, ऑल स्पेसीज एक्सेप्ट कोरिएंडर, कोरिएंडर को छोड़कर सारी स्पाइसेस बोई जाती हैं यहाँ पे। सारे मसाले जो है वो छिंदवाड़ा को बोए जाते हैं और इसीलिए छिंदवाड़ा को कहा जाता है केरला ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऑल स्पाइसेस एक्सेप्ट कोरिएंडर यहाँ बोए जाते हैं, जिंजर में पहला नंबर है। उसके बाद है गार्लिक जो रतलाम ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कोरिएंडर जो है वो गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चिली जो है वो खरगोन में है। शुगर केन नरसिंहपुर में है आपका। पोटैटो जो है वो इंदौर में है। पल्स भोपाल, ऑरेंज बैतूल, ग्रेप्स रतलाम, बनाना बुरहानपुर, आंवला जो है पन्ना में और हनी जो है वो मुरैना में। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं और टॉप प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद थोड़े से कैप्सूल्स हैं जो खाने हैं। दैट इज कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो 4th टाइम मध्य प्रदेश को मिला है। चीफ क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश वीट है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राम कहाँ होता है, विदिशा में। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ये 3 डिस्ट्रिक्ट करती हैं, ग्वालियर, मुरैना एंड भिंड। पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फूड ग्रेन्स 4th नंबर पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये आपका 5th नंबर पे है 2019 के अकॉर्डिंग। और 2020 का आपने करंट अफेयर में पढ़ाई होगा, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल 1980 में हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो 49% लैंड इज कल्टिवेबल है। फर्स्ट ऑल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो भोपाल में है। और ग्रेप्स रिसर्च सेंटर जो है वो आपका रतलाम में, और रतलाम ही सबसे ज़्यादा ग्रेप्स प्रोड्यूस भी करता है।
फिर आपका है यंत्रादूत ग्राम योजना इज ऑपरेशनल इन 139 विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट इज ग्रांटेड फॉर इक्विपमेंट्स। एंड कॉटन, ओपियम, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, फ्लैक्स सीड, सीसम, तिल जो है, और ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। देन बाजरा, राइस, मेज, ऑयल सीड, ज्वार, व्हीट, पल्स, अलसी जो है वो फूड ग्रेन्स हैं। सूरज धारा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर में खोली गई थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, इंडियाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। और मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर में है। 72% खरीफ क्रॉप एरिया एंड 63% राबी क्रॉप एरिया ऑफ मध्य प्रदेश है। क्योंकि हमारे यहाँ मानसून वाला क्लाइमेट है, तो मानसून पे डिपेंड करता है कि ग्रोन सीजन क्या रहेगा और कौन कौन सा फसलें बोई जाएंगी, कौन सी ग्रो कर सकती हैं। एंड 8% प्रोडक्शन ऑफ कंट्रीज राइस प्रोडक्शन ऑफ टोटल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का टोटल पार्ट है वो 8% कंट्रीज का राइस प्रोडक्शन करता है। देन नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर में है, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल इन्वेस्टेड है ये। और एशियाज बिगेस्ट सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो उज्जैन में है। राइस रिसर्च सेंटर जो है वो बड़वानी में है। सोयाबीन फैक्ट्री जो है वो उज्जैन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट मंदसौर एंड छिंदवाड़ा है। इंस्टीट्यूट मंदसौर और छिंदवाड़ा में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में। तो यहाँ थोड़ी सी टर्म जो है वो याद रखने वाली है कि अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आ जाए तो जबलपुर रहेगा, और इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए तो भोपाल आएगा। कॉटन जो है वो वाइट गोल्ड प्रोडक्शन कहलाता है। थर्ड जो है वो इंदौर है, और फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र है। सो थर्ड जो है वो कॉटन के मामले में वो मध्य प्रदेश है। और टेक्सटाइल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया है। मध्य प्रदेश जो है वो फोर्थ इन पॉवर्टी है। विपुल उत्पादन कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सोयाबीन प्रोडक्शन ऑफ टोटल इंडिया प्रोड्यूस 62%। सोयाबीन जो है वो सारा इंडिया भारत मिला कर 62% प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला सीरीज खत्म। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।